Welcome to our channel. Today we will discuss about electric potential and potential energy, which is the part of electrostatics. So let us start. Initially, I will discuss about the basic concept of the electric potential, and by those all the concepts, and we will get the formula by that one, and after that we will derive some expressions which will be based on these all the formulas. So first of all, I will discuss about electric potential. What do you mean by electric potential? Very simple concept is here कि अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया है कि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी है, सपोज दैट इज एट इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे है, एंड वी आर ब्रिंगिंग इट from infinity to a fixed point, then definitely we have to do some work, and work done required to bring unit positive charge from infinity to a fixed point is called electric potential. In general, electric potential is also defined as work done per unit charge. So that formula I have written over here. V is electric potential, that is work done per unit charge, and we know work done is force into displacement, I will take here R, divided by Q naught. And we know one more thing, here we can write, since work done is force into displacement, general term I am writing, and work force acting per unit charge is nothing but electric field. So in general we can write it V is equals to E into R. We can write, since E is equals to F by Q naught. Mean to say, force acting per unit charge, electrostatic force acting per unit charge is nothing but electric field. So this term become E and this is already R. So now we can say that there is the relation between electric field and electric potential, which is this relation. In general we will write later on also, and we can write further V is equals to, what is the formula of electric field intensity? E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. We are taking two charges Q and Q naught. Sorry, it is Q by R square. This is the formula of electric field into this R. So we can write into R. Now one R and another R get cancelled. So finally we are getting the formula as V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. So this is the basic formula whatever we will use in this topic for the derivations. तो हमें एक जनरल फार्मूला पता हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. अच्छा, मैं यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ. हमने E का वैल्यू यूज़ किया है और E का फार्मूला है 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So ultimately पूरे टॉपिक में जो डेरिवेशंस होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, उसका हमें बेसिक फार्मूला जो याद रखना है, क्या क्या आने वाला है, 1 by 4 pi epsilon naught Q by चार्ज. तो एक चार्ज है और एक डिस्टेंस का टर्म है, लाइक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ R है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज है. सो दिस फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर. व्हाट इज the formula for electric potential? That is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. So now we will start with the topic. This was the basic concept regarding the topic, and now I'm going to start the topic. So in this topic, first of all we have to discuss about the electric potential. As earlier I have mentioned the definition of electric potential, it is the same कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इन्फिनिटी पे है, एंड वी हैव टू ब्रिंग दैट unit positive charge from infinity to a fixed point, then we have to do some work,
and that work done per unit charge to which we are bringing from infinity to a fixed point, that is called electric potential. Electric charge, potential, it is kind of capacity to do work, but here which kind of work we are doing? We are bringing a unit positive charge from infinity to a fixed point. That's all. So the work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field is called electric potential at that point. This is the definition. Now, already I have written the formula, that here it is. If W be the work done in carrying the test charge plus Q naught from infinity to a point P in the electric field, then potential at point P is given by V is equals to W by Q naught. Now we have to write the SI unit of electric potential. So we'll start with here, since V is equals to W by Q naught. So unit क्या होगा? Unit of work. So here we can write unit of work done divided by unit of charge. Unit of charge. And we know what is the unit of work done? It is joule. So 1 unit will be, therefore unit of V will be is joule per coulomb. Joule per coulomb, because unit of work is joule and unit of charge is coulomb, and joule per coulomb itself is volt, that is volt, and it is represented by capital V. So it is the unit of potential. Now same way we can define the term 1 joule. What will be term 1 joule? We can write over here for 1 joule. So since it's 1 volt, not 1 joule, that is one of the mistake. I will change it. It is 1 joule. Sorry, it is 1 volt. 1 volt. So what will be definition of 1 volt? We can define 1 volt as, we can write 1 volt will be 1 joule upon 1 coulomb. So same way we can define it. It is the, if 1 joule of work is done, unit of work done is joule, 1 joule of work is done in carrying a test charge of 1 coulomb, when we are bringing 1 coulomb of charge, and by that time if work done is 1 joule from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be called as 1 volt. Okay, now next part is the dimensions of electric potential. How we can find out the dimensions of electric potential? So again we can start from here, since V is W by Q. Q we can write a small q or capital Q, no problem. So we have to write the dimension of V. तो हमें यूनिट पता होगा तो हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं, एंड वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, and we can write work done is force into displacement upon charge is coulomb, and Q is, we know Q is I into T, so we can write the unit. So therefore unit of V, वो तो मैंने फार्मूला लिख दिया, अभी यूनिट ऑफ V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इज, यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस पार्ट फोर्स का यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and unit of R is kind of distance or displacement, so unit of displacement is meter, so we can write into meter upon I is ampere, and unit of current is ampere, and unit of time is second.
So it can be written as kilogram meter square per second square पर एम्पियर एंड सेकेंड का एक और माइनस हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज -3. दिस विल बी -3, टाइम का पावर -3. सो नाउ डायमेंशन वी कैन राइट, therefore dimension of V will be, we write it M, L, T and I or A we can write. एक्चुअली नोटेशन हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे I आएगा, not A. Okay. So as we can see, kilogram is the unit of mass. M is the mass. Its power is nothing but 1. So here power will be 1. So we can write it as 1. Unit of meter square is here. Meter is the unit of length and power of length is 2. So here it will be 2. And T time, that's power is -3 and current, that's power is -1. So this is the dimension of electric potential. Now one more term is here. Next term is physical interpretation of electric potential. As we know, current, direction of flow of current is from positive to negative and direction of flow of electron is from negative to positive. So that term is here. Positive charge always flows from higher potential to a lower potential, while negative charge always flow from lower to a higher potential until the potentials becomes equal. Okay, next term is potential difference. As we talk in general, very basic part, कि एक बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. पॉजिटिव टर्मिनल इज हाइयर पोटेंशियल and negative terminal is lower potential. Difference between higher potential and lower potential is called simply potential difference, right? And when we say कि battery get discharged when both the potentials higher and lower becomes equal, so no flow of charge is there, no flow of current is there. So anything flow from high to low, that is the basic concept regarding the potential difference also. So terminals of a battery provides the potential difference, and difference between two terminals of a battery is simply called as the terminal potential difference. That kind of term is here. Simply it is the work done by an external agent in carrying unit positive test charge from one point to another point in an electric field is called the potential difference between those points. So suppose we are assuming कि एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट है, and both are positive, so repulsive force is taking place, so force is this one. And suppose we have taken here 2 points A and B. Now if W is the work done in carrying test charge Q naught plus Q naught, from here we are bringing from B to A, we are bringing this charge from B to A, then potential difference between A and B, because initially when this charge was at B, then potential difference was B, and when we are bringing it from B to A, then that at A its potential is VA. So more work has been done because more displacement is there, so this becomes the higher potential, and less displacement is here, so this is lower potential, and difference between higher and lower potential is work done per unit charge, that is simply called as electric potential, or that is the potential difference. Okay, so of course that is this term. Now next term is electron volt. It is very simple concept. It is defined as the product of charge on electron into 1 volt, that is 1 electron volt. And और हम इसको सिंपल वे डिफाइन करें तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके आ रहे हैं, देन वट एवर वर्क विल बी डन ड्यूरिंग दैट वन, दैट विल बी कॉल्ड एज
1 electron volt. If 1 joule of work we are doing for bringing an electron from one point to another point or from infinity to a certain point, then whatever work will be done during that one, that will be called as 1 electron volt. So that definition is here. 1 electron volt is the work done in taking one electron from one point to another when the potential difference between these points is 1 volt. In other words, 1 electron volt is the energy which an electron acquires when accelerated through a potential difference of 1 volt. So simple way, I will write, since V is W by Q, Q naught. But for 1 electron volt, 1 electron volt, for 1 electron volt, this will be, I can write W will be Q naught into V, but instead of Q, what will be here? Charge on electron, and this will be 1 volt. We can write, since W is Q naught into V, so for 1 electron volt, this can be written as work done will be charge on electron into 1 volt. This is 1 electron volt. And we know charge on electron is, I am writing in terms of magnitude. Another way, charge on electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So I am writing in terms of magnitude. So it is 1.6 into 10 raised to minus 19 into 1 volt. This is coulomb, and this is volt. So ultimately work done will be 1.6 into 10 raised to minus 19, and coulomb into volt is joule. So this term will be joule. So this work done is nothing but 1 electron volt. So in general we can write 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. This is the term of 1 electron volt. Fine. Next term is electric potential due to a point charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो हमें ये दिया है कि एक पॉइंट चार्ज है और हमने जैसा कंसेप्ट पढ़ा कि पोटेंशियल होता क्या है. इट इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और यहाँ पे हम लोग को बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो हमें एक पॉइंट चार्ज दिया है. तो हियर वी हैव वन चार्ज प्लस क्यू, हियर वी हैव अनदर पॉइंट चार्ज. सो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. And suppose we want to calculate the electric potential, we have to find out the electric potential at point P due to charge plus Q. Due to charge plus Q. So here we have taken OP is equals to R and this distance between two charges is X. तो हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, हमें V चाहिए. तो हमें वैसे भी पता है V इज W बाई क्यू नॉट, राइट, सिंपल वे. तो वर्क डन चाहिए. तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया इन बिगनिंग. तो हमें फोर्स का टर्म चाहिए और चार्ज चाहिए. तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेफिनेटली दो चार्जेस के बीच में एक्ट होगा, इसलिए हमने ये चार्ज लिया और ये चार्ज लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x. दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x. सो हियर वी कैन राइट लेट two charges q and q naught, they are the positive charges, are
at distance x apart, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है. सो देयरफॉर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स it will be what? F is equals to क्या है फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या है दोनों चार्जेस के बीच का? Q एंड Q नॉट के बीच का डिस्टेंस इज x, सो इट विल बी x स्क्वायर. दिस आई विल टेक एज इक्वेशन नंबर 1. एक्चुअली हमें क्या निकालना है? मेनली हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, और हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले हमें वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज W बाई Q नॉट. तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए. सो ऑल द अरेंजमेंट्स वी मेड ओवर हियर. ये टर्म्स हमने डिसाइड किया हुआ है. And we are bringing test charge from any point to a fixed point, and that fixed point is P. So I will write let P be the point at which potential is to be calculated. Potential is to find or to calculate. So this term also we have to remember. So we know one thing, कि for that term when we will take it when we are bringing it from, ultimately we have to bring it from A to P, but here we are, और ये भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें ए से ही लाना है. ये तो ठीक है, डायग्राम में ए से लाना है, बट हम लोग बाय डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि वी हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ वर्क डन क्या होगा? जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज. बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज व्हाट विल हैपन? रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट. So direction of electrostatic force will be this one. ये force का direction होगा. And we are talking, we are bringing the charge from infinity to a fixed point. तो हम charge को इधर ला रहे हैं, displacement हमारा इधर हो रहा है और force इधर है. तो force and displacement, as you can see now, force and displacement both are being in opposite direction. So definitely whatever work will be done, that will be negative. So we can write here, as we are bringing, I will write let dW be the small work done, when we are bringing it from A to B. For bringing charge from A to B for displacement, small displacement dx. So we are getting, यहाँ पे next point में already mention हुआ है कि the direction F is away from O. If test charge Q naught is displaced by distance dx to the point B, then work done dW is equals to F into minus dx. या हम simply लिख सकते हैं work done is equals to force into displacement. So minus F into dx. Anything will be okay. So this term we get. अच्छा, ये work done मिल गया, तो हमें पूरा वर्क डन चाहिए. हमारा चार्ज हमें कहाँ से कहाँ लाना है? वी हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम ए टू हियर, ए टू पी. देन व्हाट विल बी टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दैट वन? सो वी कैन राइट देयरफॉर, एंड फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में निकाला है, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे डाल देंगे. सो वी कैन राइट देयरफॉर वर्क डन
Therefore, work done dW is equals to, we can write here, we can utilize more space, dW is equals to minus F into dx. So minus F is force, already we have written the formula over here from equation 1. What is that? That is 1 by 4 pi epsilon naught q naught by x square into dx. It is the small work done. So total work done हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है? चार्ज वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट हमारा P है, तो इन्फिनिटी से हम कहाँ ला रहे हैं? P पॉइंट पे ला रहे हैं, और पॉइंट P इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम Q. तो लिमिट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू R. So limit will be from infinity to R. So total work done for bringing charge from infinity to point P, which is at distance R from charge Q, So we can write it, and we can get it by integrating dW. So W will be integration of dW, and limit is from infinity to R. Okay, so we can write this as integration from infinity to R. And what is dW? Already we have this equation, so we will substitute it. So we'll get minus 1 by 4 pi epsilon naught q naught by x square into dx. What is the constant over here? It is minus 1 by 4 pi epsilon naught q naught. This is the constant term. No need to write 1. Okay, anyway, it is into, and integration is from infinity to R of 1 by x square into dx. So already we know one more thing, we know integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here integration of x raised to minus 2 dx will be x raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, which will be minus 1 by x. x raised to minus 1 is 1 by x, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव साइन वी आर गेटिंग, सो इट विल बी माइनस 1 by x. तो आगे हम इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो विल गेट इट एज माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इंटीग्रेशन कर लिया हमने. अच्छा, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ मैं. सो वी कैन राइट इट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx एंड लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. सो विल गेट minus q naught by 4 pi epsilon naught, and limit integration is already minus 1 by x. So this term will be minus 1 by x. We can write the limit. It will be minus 1 by x, and limit is from infinity to r. Now this minus into minus will be plus. So और हमें पता है कि लिमिट सब्सटीट्यूशन हम लोग करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दिस विल बी q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी प्लस ऑलरेडी 1 बाय अपर लिमिट इज r minus 1 by lower limit is infinity, but 1 by infinite is 0.
सो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, 1/r का टर्म बचेगा और ये ऑलरेडी है. सो विल गेट दिस एज 1/4 epsilon naught q naught by r that we are getting, and this term is w. बट हमें क्या चाहिए, ये हमें वर्क डन मिला फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू point P, which is at distance r from charge q. We are talking about this. We are bringing this q naught from infinity to a fixed point. That point is P, which is at distance r from charge plus q. That was to be find out us. तो ये हमें मिल गया work done. This is our work done. But हमें ultimately चाहिए क्या? We need potential. So we know one more thing, since V is W by Q naught by definition. So W already we have, I can write it 1 by Q naught into W. So 1 by Q naught into W is 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R, this term. And here few terms will get cancelled, q naught will get cancelled, and ultimately we will get what we require, that is V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. That was to find out us, and this is the final expression for the electric potential due to a point charge. Due to a point charge which was to be derived us. Okay, one thing I have drawn one graph over here. यहाँ पे हमें मिला V is inversely proportional to R if charges get constant, and हमने E का फार्मूला पढ़ा 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड हियर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, and as we will plot the graph, V with respect to distance and E with respect to R, so we are getting this kind of graph. Here V is inversely proportional to R, so this kind of graph, and E is inversely proportional to R square, that's graph we are getting like this way. So that is one of the extra knowledge. I can write here also, एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, since E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So this indicates E is inversely proportional to R square, and this formula indicate V is inversely proportional to R. So next term is electric potential due to a group of point charges. Suppose group of point charges are given. So how will write the electric potential? So in general हमने electric potential का फार्मूला क्या देखा? That is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. तो सिर्फ एक चार्ज आने वाला है और एक डिस्टेंस आने वाला है. तो अगर ये हमें दिया है कि if a point at a distance r1, r2, r3 and r4 meter from the point charges q1, q2, minus q3 and minus q4. तो मैं सिंपल वे ऑन बिहाफ ऑफ दैट फार्मूला क्या था हमारा, v is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. सिर्फ एक चार्ज आता है, एक डिस्टेंस आता है. तो आई हैव मेंशन ऑलरेडी पोटेंशियल एट डिस्टेंस r1 ड्यू टू चार्ज प्लस q1, बिकॉज ये डिस्टेंस r1 है और उसके लिए चार्ज प्लस q1 है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारा नया फार्मूला क्या हुआ, v1 इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 by r1. दैट इज इक्वेशन 1 से. सिमिलरली वी कैन राइट पोटेंशियल at distance, similar way, at distance r1 r2 due to charge, next charge is q2 plus q2. ये क्या होगा, same way we can write v2 is equals to
1/4πε0 Q2/R2, Q2/R2. दिस इज इक्वेशन 2 से। अभी हमने क्या यूज़ किया, R2 एंड Q2। अभी R3 के लिए क्या है, -Q3 है। तो नेक्स्ट वी कैन राइट now potential at distance R3 due to charge, क्या है चार्ज, -Q3। अब चार्ज माइनस में हो गया तो V3 हमें क्या मिला, इट इज़ 1/4πε0 -Q3/R3, दैट इज इक्वेशन 3 से। अबे नेक्स्ट हम लोग को लेना है R4 एंड -Q4। तो सेम वे वी कैन राइट, आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट आल्सो पोटेंशियल at distance R4 due to charge क्या था, -Q4, तो माइनस में लेना है, -Q4। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, दिस टर्म विल बी V4 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 -Q4 divided by R4. This is our equation 4 से। Now we can write, therefore net potential of the system of charge, that we can say V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4, and सब में common क्या है, we can see in all four what is common, 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4π, तो that term is common। अच्छा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, सबको एक साथ लिख देते हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 का वैल्यू 1/4πε0 Q1/R1, V2 का वैल्यू 1/4πε0 Q2/R2 प्लस V3 का वैल्यू 1/4πε0 -Q3/R3 प्लस V4 का वैल्यू दिस, सिर्फ ये चार्ज चेंज हो रहा है, तो दैट्स वैल्यू इज 1/4πε0 -Q4/R4, राइट। व्हाट इज कॉमन इन ऑल, सब में कॉमन क्या है, 1/4πε0, दिस टर्म इज कॉमन, ये टर्म हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, Q1/R1 इज हियर, दिस Q2/R2 इज हियर, -Q3/R3 is here, -Q4/R4 is here, all terms are in volt। अगर ऐसे ही n टर्न्स हैं और सबके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लोग इसको Qn तक कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमने यहाँ तक किया, प्लस Q5/R5 प्लस Q अप टू वी कैन राइट अप टू Qn प्लस Qn/Rn। तो उसको इन जनरल समेशन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ Qn/Rn, या Q यहाँ अप टू n है तो ये Qn हो जाएगा और ये Rn हो जाएगा, दैट इज़ द प्रिंटिंग मिस्टेक, इट विल बी Qn to Rn, बिकॉज जब हम समेशन करते हैं तो देन स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, सो नो नीड टू राइट दैट वन, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, Ri इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज Qi। Okay, this is the additional information that I want to mention कि V के टर्म्स हम 3 और फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा कि व्हाट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट we can write the formula for the potential also। तो in general एक जो नॉर्मल है
v हमारा 1/4πε0 q/r है। तो अगर ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो हम उसको इंटीग्रेशन फ्रॉम dq/r लिख सकते हैं। r कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dq दैट विल बी q ओनली। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ओवर एरिया, ए फॉर एरिया इज हियर, सिग्मा डी ए। ये सिग्मा डी ए का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस, यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए लिखा है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। नाउ दिस इज फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज q बाई या dq बाई एरिया, आई विल राइट dA। तो हमें dq क्या मिला? dq क्या मिला? दैट विल बी सिग्मा इंटू dA। दैट पार्ट इज हियर। यहाँ पे जो dq टर्म है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में सिग्मा इंटू dA आ गया। सेम वे वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, volume charge density, not volume density. So it is volume charge density क्या है? It is charge acting per unit volume and we represent it by rho, letter rho. So rho is volume charge per unit volume, so it can be written as dq upon dv. But if we wish to write dq, that will be rho into dv. So now this concept has been used over here. Instead of this dq we can write rho into dv, dq के जगह rho into dv we can use it. तो ये स्पेसिफिक सम्स के लिए फार्मूलाज हमें मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाला था। सेम वे हियर इट इज फॉर द पोटेंशियल। वहां हमने फील्ड के लिए निकाला था, अभी हमें पोटेंशियल के लिए चाहिए। सो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? एक बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अगर दो, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, दो चार्जेस हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस हम हमेशा 2l लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डायपोल लेंथ, और ये चार्जेस हैं। सो इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस देन दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल, या दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट्स हैं। अब हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल at a point on the axis, that is axis of the dipole। तो ये हमारा डायपोल है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज डायपोल लेंथ। तो हमने ये सेंटर O ले लिया है, तो सेंटर O से ये डिस्टेंस L हो गया और ये भी डिस्टेंस L हो गया, बिकॉज ओवरऑल डिस्टेंस इज 2l। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P जो है दैट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O। ये जो पॉइंट P है इट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O। एंड वी हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग आल्सो, every time we will calculate all the distances, we'll measure all the distances from center O. So we can start। अभी वही कंसेप्ट है कि अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, पहली चीज़ तो ये है कि पोटेंशियल का फार्मूला हमें हमेशा याद रखना एप्लीकेशन के टाइम पे, दैट इज़ 1/4πε0 q/r। इन जनरल यही फार्मूला है हमारा। तो एक चार्ज और एक डिस्टेंस है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस q एंड प्लस q। अगर हम प्लस q की बात करें तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें PB। PB क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक R है और ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस PB क्या होगा? R माइनस L। और अगर ड्यू टू चार्ज माइनस Q चाहिए तो इतना डिस्टेंस तो हमारा R है और ये L है, तो ये डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगा। तो PA जो है वो R प्लस L हो जाएगा। तो वी कैन राइट ओवर हियर AB
is equals to 2L, that is the dipole length of an electric dipole. Dipole length of an electric dipole. And according to this one, we can say let P be any point which is at distance r from center O, at which net potential is to be find okay, net potential is to be find due to electric dipole. Fine. Now few terms I will mention. हमें terms क्या क्या पता है? AP is equals to PB is equals to L, and AB already I have mentioned, it is 2L, and PB, sorry, yes, OP is R, this distance O to P, that is R. So what will be PB? PV will be R minus L, this distance. PB, this distance is already R है और ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक distance कितना होगा? R minus L. And what will be AP? AP will be R plus L. So we can write. अब इसका कंसेप्ट क्या है कि ये एक्सियल लाइन है. अब कंसेप्ट की बात करें तो एक चार्ज ये है, मैंने जैसा पहले बताया था, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये जनरल फार्मूला है. तो एक पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज जो यहाँ पे ऐसा, और दूसरा पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू दिस माइनस चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R. बट एक चीज़ है, यहाँ मैंने R की जगह मुझे क्या लेना है? PB लेना है, सो PB लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है? A से डिस्टेंस लेना है, तो AP लेना है बस. और फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा. दैट इज़ टू बी फाइंड आउट अस, एंड दैट इज़ द कंसेप्ट कि दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम फाइंड आउट करें और बाद में उनको ऐड कर लें तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा. सो वी कैन राइट let V1 be the potential at point P due to charge plus Q. Potential at point P due to charge plus Q क्या आएगा? सो सिंपल सा कंसेप्ट है. V1 हम उसको V1 ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई प्लस Q बाई, वी वांट टू फाइंड आउट ड्यू टू चार्ज प्लस Q, तो प्लस Q से डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा? PB. दिस डिस्टेंस विल बी PB, which I can write it 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, what is PB? PB ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, that is R minus L. So that term will be R minus L. This I will take it as equation number 1. Now next part, potential. Next we will write potential at point P due to charge minus Q.
due to charge minus q. At point P we want to calculate once again due to charge minus q. तो इसको हम लोग V2 ले लेते हैं. So it will be V2 is equals to फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कहाँ से कहाँ ले रहे हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू. तो माइनस क्यू से इस पॉइंट P का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है. तो ओवरऑल डिस्टेंस AP क्या हुआ, AP इज R प्लस L. मतलब ये डिस्टेंस हमें लिखना है AP एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू बाई AP इज R प्लस L. This is equation 2 से. Now net potential at point P due to charge plus Q and minus Q, हम क्या करें दोनों को ऐड कर देते हैं. So therefore net potential at point P due to electric dipole that will be V is equals to V1 plus V2. अब हम इनको ऐड कर लेते हैं. तो V1 क्या है हमारा, V1 is both the terms we have 1/4 pi epsilon naught Q by R minus L. देन माइनस हो जाएगा ये टर्म, क्योंकि इस टर्म में माइनस है, वो टर्म मैं पहले माइनस लिख देता हूँ. तो माइनस दैट टर्म विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L. व्हाट इज कॉमन इन बोथ? इन बोथ व्हाट इज कॉमन, दैट इज कॉमन पार्ट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी आर गेटिंग 1/R minus L minus 1/R plus L. अभी हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लगेगा, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो विल गेट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या मिलेगा R प्लस L. ध्यान रहे R प्लस L, पहले ये जाके मल्टीप्लाई हुआ वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर माइनस R माइनस L. तो माइनस R माइनस L, ठीक है, माइनस R माइनस L, एक दो स्टेप मुझे बढ़ाना पड़ेगा. अपॉन नीचे क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो A प्लस B इंटू A माइनस B, तो दैट विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सो इट विल बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. Fine. Now as we'll open the bracket, इस पार्ट में अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान रहे, तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा. तो माइनस R एंड प्लस R विल गेट कैंसिल और ये L प्लस हो गया. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको 2L. सो वी विल गेट therefore V is equals to Q by 4 pi epsilon naught in bracket 2L by R square minus L square, R square minus L square. That term we are getting. अभी एक कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे, if L is very 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 small as compared to R, so therefore L square term will be neglected. So हमें क्या मिलेगा, अब हमने बोल दिया कि L स्क्वायर का टर्म नेग्लेक्ट हो गया, तो ये बचा सीधा R स्क्वायर. सो वी विल गेट देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, अच्छा Q इंटू 2L क्या होता है, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ इज P. वी कैन राइट हियर सिंस P इज इक्वल्स टू, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डायपोल लेंथ, दैट दिस रिलेशन वी नो. सो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये हो गया P. सो वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P by R square. This term is the term for electric potential along the axis of an electric dipole. Okay. Now next part is the potential at a point on the equatorial line of the dipole. ये पहला वाला derivation किस पे था? Along the axis. And now we are talking about along इक्वेटोरियल लाइन में. तो इक्वेटर कहाँ होता है? फिर से हमें डायपोल बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल. तो ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द डायपोल लेंथ, दैट इज 2l. ये सेंटर पॉइंट O लिया है, तो ये डिस्टेंस हमारा L हो गया और ये भी डिस्टेंस L हो गया. It is same. AO is equals to OA is equals to OB is equals to L. And we have to find out electric potential at distance R from center O, which is at point P. इस point पे, because ये line equatorial line है. This line is the equatorial line. The line which is passing through the equator of an electric dipole is called the equatorial line. तो उस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. दैट इज सो सिंपल. अगेन वी कैन सी यार जो टर्म्स हैं हमें दिए हुए, वी कैन राइट हियर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू एल, राइट, एंड ओ पी इज इक्वल्स टू आर. इट इज गिवन ऑलरेडी. OP is equals to R. तो AP will be equals to PB और ये हाइपोटेनस होगा. अगर हम बात करें इसकी, ये ट्रायंगल की, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ये डिस्टेंस हमारा L है, तो L स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस R है, ये हाइपोटेनस हो गया. तो दिस विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब PB स्क्वायर विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो PB क्या होगा? इट विल बी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. दैट मच आई एम राइटिंग डायरेक्टली, इतना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. तो दैट विल बी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल्स एट पॉइंट. सेम वे जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि चार्ज प्लस क्यू से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और एक माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. और कहाँ पे? एट पॉइंट P, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, राइट. तो एट पॉइंट P वी वांट टू कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक dipole, and that point is at the equatorial line. So let P be the point which is at distance R from center O of an electric dipole. तो हम लोग बाकी सब लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग लिख लेते हैं. लेट V1 be the potential at point P at distance at point P due to charge plus Q. हम प्लस Q की वजह से ले रहे हैं. तो डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे? इस पॉइंट P का डिस्टेंस प्लस Q चार्ज की वजह से ये वाला लेंगे. तो विल टेक PB. एंड वन मोर थिंग, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है, बट ये R हमारा क्या है? दैट इज PB.
So this step we will write, we can write therefore V1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught plus Q by PB, and PB लिखने का ज़रूरत लिख देते हैं हम लोग. This term is 1 by 4 pi epsilon naught, PV will be root of, तो Q by root of R square plus L square. या हम सिर्फ इतना लिख दें कि PB is equals to AP, तो भी हमारा काम चल जाएगा ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो दिस बिकम इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल राइट let V2, we will write let V2 be the potential at point P due to charge minus Q की वजह से. तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, अब हम लोग इसको लिख देते. सो V2 विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस क्या है हमारा, चार्ज माइनस Q से, दैट इज AP. तो माइनस क्यू बाई AP which I can write minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by, what is AP now, again it is root of R square plus L square. This is equation 2 से, ये हमारा equation 2 हो गया. तो net potential at point P क्या हो गया, V1 plus V2. So we can write therefore net potential V is equals to V1 plus V2. So therefore V is equals to, V1 is, दोनों सेम है टर्म्स, एक प्लस में है एक माइनस में है. ये V1 है प्लस में है, ये V2 माइनस में है. तो ठीक है, एक स्टेप हम लोग लिख लेते हैं एंड वही स्टेप में ख़त्म कर देते हैं. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रूट ऑफ R square plus L square minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by root of R square plus L square, which is ultimately equals to 0. So here we are getting electric potential along the equatorial point, equator EQ, that is equals to 0. Okay, so this derivation we completed. Now next is, which is little bit lengthy also, that is the potential at any point. तो अब तक हमने क्या किया, along the equator निकाला, along the axis निकाला. बट अगर वो पॉइंट किसी भी पॉइंट पे है, मतलब वो जो पॉइंट P था ना, वो अभी इक्वेटर पे भी नहीं है, एक्सिस पे भी नहीं है, कहीं अलग ही है, किसी भी पॉइंट पे है, तो उसका एक जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे. तो वी आर अज्यूमिंग, इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग कि दैट पॉइंट P इज हियर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. तो पॉइंट P इज हियर, यहाँ पे है पॉइंट P, और इलेक्ट्रिक डायपोल, ये चार्ज माइनस Q एंड ये चार्ज प्लस Q, वापस ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, बिकॉज इट इज द dipole length, overall dipole length is 2L. and same concept वापस से कि from midpoint or center O the distance is R at which net potential is to be calculate us, जो हमें find out करना है. तो इस केस में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें ध्यान ये रखनी है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, ये कंस्ट्रक्शन किया है. कंस्ट्रक्शन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब इस पॉइंट OP को हमने एक्सटेंड किया. ध्यान रहे OP इज़ R, और इसको हमने आगे एक्सटेंड किया
and we draw perpendicular from here as well as we'll draw perpendicular from here. तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हुआ. ध्यान रहे ये L है और ये एंगल थीटा है. हमें ये पार्ट निकालना है, दिस पार्ट. अगेन आई एम टेलिंग, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है. ये एंगल थीटा है. हमें ये डिस्टेंस पता है, इट इज L एंड दिस एंगल इज थीटा. तो व्हाट विल बी OD? OD will be L cos theta. The side which is attached with the theta is the component of cos theta. So OD will be L cos theta. OD will be L cos theta. Same way यहाँ पे ये एंगल थीटा है और हमें ये डिस्टेंस पता है, दैट इज L. तो OC क्या हुआ? OC is again L cos theta. OC is L cos theta. तो I will write according to construction OD is equals to by construction OD is equals to this part we are talking. OD is equals to OC. OD is equals to OC, that is L cos theta. And one more information is known to us, that is OP is R. OP is equals to R. So we are getting this entire term. We can say therefore PB क्या होगा? As we can see PB that will be, ये by construction है, this distance is equals to this distance. ये PB is equals to PC. By construction I am telling PB is equals to PC. और PC क्या है? PC जो है वो हमारा है OP minus CP. OP minus PB is CP is OP minus OC. Yes, OP minus OC, that I was talking. So OP is R and OC is L cos theta. Same way, by construction we are getting AP is equals to, by construction, PD. AP is equals to PD. And PD क्या होगा हमारा? That will be PD. ये entire PD है, तो PD will be OP plus OD. OP plus OD. But OP is R and OD is L cos theta. ये दोनों टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए. अगेन फिर से हमें वही करना है. क्या करना है? हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q. तो ये डिस्टेंस लेने वाले हैं और फिर लेना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q. तो ये डिस्टेंस लेना है एंड वी विल प्रोसीड फर्दर द सेम वे. अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ कि OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू L. फाइन. एंड OP इज इक्वल्स टू R ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है. सो आई विल राइट द की पॉइंट. लेट V1 be the potential at point P due to charge प्लस Q. ये सब में तीनों डेरिवेशन में देखा हमने, ये कॉमन था कि हमें एट पॉइंट P निकालना है ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ड्यू टू चार्ज माइनस Q, फिर दोनों को ऐड कर लेना है तो रिजल्टेंट मिल जाएगा. दैट वी आर प्रोसीडिंग फर्दर हियर आल्सो. सो we'll get V1 is equals to general formula 1 by 4 pi epsilon naught plus Q upon distance. कहाँ से कहाँ तक? We want to find out the potential at point P due to charge plus Q. तो ये distance क्या है? That is our PB. So it will be PB. But PB का term already हमने mention किया हुआ है. PB is nothing but R minus L cos theta. तो ये टर्म हमारा हो जाएगा
This term we can write as 1 by 4 pi epsilon naught q by what is PB? PB is r minus L cos theta. So r minus L cos theta, this term. This I will take it as equation number 1 say. Now same way we will find out for the potential due to charge minus q. So we can write let V2 be the electric potential or simply potential at point P due to charge minus q. So minus q से देखें, minus q is here. Now we'll discuss from here. Minus q is here और माइनस q से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस इज AP, बट AP इज इक्वल्स टू PD. AP इज इक्वल्स टू PD, तो हम लोग PD का टर्म यूज़ करेंगे या AP यूज़ करें, बाद में हम उसको PD डाल देते हैं, बाद में उसको हम PD डाल देते हैं, तो पहले AP यूज़ करते हैं. तो दैट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught minus q by AP. But again what is AP? AP क्या है हमारा? What is AP? AP is r plus L cos theta. तो यहाँ पे AP के जगह हम लोग r plus L cos theta डाल देंगे. So this term will be, already I will write -1 minus 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus L cos theta. This term we are getting. ये हमें मिल गया क्या? सेकेंड टर्म. अभी क्या करें, हमें नेट पोटेंशियल चाहिए, तो सेम प्रोसीजर है, हम दोनों को फिर से ऐड कर दें. तो नेट पोटेंशियल आई विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2 से. ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा, ऑलरेडी इक्वेशन 1 हमें पहले से मिला हुआ है. सो देयरफॉर नेट पोटेंशियल at net potential at point P due to electric dipole, that we can write V is equals to V1 plus V2. Now we know V1 and V2 दोनों ऑलरेडी हमने निकाला है, तो V1 V2 में सिर्फ माइनस का फ़र्क है. सो V इज इक्वल्स टू, व्हाट इज़ V1? 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus L cos theta, ये V1 है, एंड माइनस प्लस V2 में माइनस है, तो 1 upon 4 pi epsilon naught माइनस q बाई चार्ज भी, अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने माइनस लिया है. सो माइनस q अपॉन r plus L cos theta, this term. Now what is common? Just we'll take it out. कॉमन पार्ट हम लोग एक साथ ले लेते हैं, तो है कॉमन हमारा 1 by 4 pi q by 4 pi epsilon naught. बचा क्या? 1 by r minus L cos theta minus 1 by r plus L cos theta. These two terms we are getting. Okay. So further अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले इसका. ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और ये इधर चला जाएगा और बीच में माइनस है, फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे प्रीवियस वन में था हमारा. सो v इज इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, r प्लस L cos थीटा माइनस
r minus L cos theta upon r square minus L square cos square theta. That term we are getting. Now as we will open the bracket, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, that will be 4 pi epsilon naught r plus L cos theta minus r plus L cos theta upon r square minus L square cos square theta. That term we are getting. अच्छा, कुछ कैंसिल भी होगा, r एंड r विल गेट कैंसिल बिकॉज एक प्लस है दूसरा माइनस है. तो यहाँ पे L cos थीटा प्लस L cos थीटा क्या हो जाएगा, 2L cos थीटा. सो अल्टीमेटली विल गेट q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे भी हम लोग एक टर्म देख लें, ये वाला टर्म q इंटू 2L, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा p. सो वी कैन राइट सिंस q इंटू 2L इज p. तो ये टर्म को मैं p लिख दूंगा. सो इट विल बी p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा इज हियर और नीचे r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. So again we can say if L is very very small as compared to R, we can write if L is very very small as compared to R, so L square cos square theta term can be neglected. So what we are getting, therefore V is equals to, अल्टीमेटली क्या हमें मिल रहा है, V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square. This is the potential at any point. अब मैं ज़रा दो कंडीशन की बात करता हूँ. ये मुझे जनरल एक्सप्रेशन मिला है. अगर मैं ये बात करता हूँ कि थीटा एंगल, मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट P, ये अलोंग द एक्सिस होगा. ये थीटा तो तभी बना जब ये यहाँ पे है, राइट. बट अगर ये पॉइंट अलोंग द एक्सिस आ गया यहाँ पे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. थीटा विल बी 0. एंड व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1. तो अगर थीटा 0 हुआ तो cos 0 1 हो जाएगा. तो V अलोंग द एक्सिस जो हमने पहला डेरिवेशन किया है उसका फार्मूला यही है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर. दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि जब ये पॉइंट अलोंग द इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन पे, पॉइंट P जो है इक्वेटर पे, अब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, एंड cos 90 इज 0. सो एंटायर डेरिवेशन विल बी, ये cos 90 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया. सो V बिकम्स 0. और यही दोनों रिजल्ट हमने इसमें निकाला. इक्वेटोरियल लाइन में 0 है नेट पोटेंशियल, और एक्सियल लाइन में अलोंग द एक्सिस जब थीटा क्या था, 0 था, तो cos 0 1 हुआ था, तो हमें क्या मिला, P बाई R स्क्वायर. तो ये अलोंग द एक्सिस है, P बाई R स्क्वायर. अलोंग द इक्वेटर इट इज़ 0, एंड अलोंग एनी पॉइंट जनरल टर्म V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square. अच्छा, फिर से आप लोग को एक छोटा सा डाउट हो सकता है. हमने बोला है कि जनरल फार्मूला जो V का है वो है 1 by 4 pi epsilon naught Q by R है. बट यहाँ पे R स्क्वायर टर्म आ रहा है क्योंकि यहाँ पे P है, P जो है Q इंटू 2L है. तो एक डायमेंशन लेंथ का यहाँ पे है जो दूसरे वाले से कैंसिल हुआ है. Okay, then next term is electric field as gradient of electric potential, relation between E and V. Already in very beginning I was mentioned that part. Again here हमें दो चार्ज दिया है, प्लस Q and Q naught, and they are separated by a distance R. Suppose we are bringing
it from A to B by a distance dr, तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्सन विल टेक्स प्लेस, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया. सो एवरीथिंग वी नो. सो सपोज अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए, देन फोर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, सिंस E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, तो F क्या हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, F विल बी क्यू नॉट इंटू ई. दिस रिजल्ट वी हैव यूज ओवर हियर यहाँ पे. तो सपोज हम लोग इसको B टू A लेके जा रहे हैं, एज वी आर मूविंग इट फ्रॉम B टू A, तो डिस्प्लेसमेंट B से A की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा dr है. तो वर्क डन क्या हुआ, अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये फोर्स का डायरेक्शन ये है और हम लोग इसको B टू A की तरफ ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन विल बी नेगेटिव. तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, F इंटू माइनस डी आर. वेल डी आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन क्या हो गया हमारा, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमारा क्यू नॉट इंटू ई है और ये माइनस साइन इंटू डी आर. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. इस क्यू नॉट को हम इधर डिनोमीटर में लेके चले आए, तो ये क्या बचा, माइनस डी आर. बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, तो वी आर गेटिंग इट एज पोटेंशियल V, राइट. अल्टीमेटली वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर. डायरेक्टली ये लिखने का ज़रूरत नहीं था हमें, हम डायरेक्टली यहीं से, ये टर्म हमारा V हो गया तो V हो गया, तो V इज इक्वल्स टू, वी आर गेटिंग V इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू आर. V इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू आर, या इन जनरल वी कैन राइट माइनस ई इंटू डी आर इज इक्वल्स टू डी वी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला, डी वी अपॉन माइनस डी वी अपॉन टी आर. अब वही चीज़ हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे पोटेंशियल हमारा इस पॉइंट पे V1 है, इस पॉइंट पे V2 है. V1 इज पॉजिटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल. तो V1 माइनस V2 और इनके बीच का डिस्टेंस D है, तो अभी यही रिलेशन से हमें मिला E इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर. तो E क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन दीज टू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस इज D. तो ये भी हम कहीं एज अ फार्मूला वी कैन यूज इट. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये जो इक्विपोटेंशियल वर्ड है, इट हैज़ बीन मेड बाय टू वर्ड्स. इक्वी मीन्स सेम, पोटेंशियल ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं चार्ज प्लस क्यू, तो एट अ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज हमारा फार्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. अगर R सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज सेम, सो ये जो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स मिला, दिस विल बी कॉल्ड एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. या ये भी हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज यहाँ से भी डिस्टेंस सबका सेम है. सो बाय डेफिनेशन जो हमने बताया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. ओके, नेक्स्ट इज एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. जहां पे सब जगह पोटेंशियल सेम हो, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. हम थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड वे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स in the medium at which, due to a charge at which potential always remains same or constant. That may be called as the equipotential surface. Important properties of the equipotential surface: no work is done in moving a charge between any two points on an equipotential surface.
क्यों ऐसा? बिकॉज जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा, और हमने पढ़ा है V इज W बाई Q, तो W क्या होगा? Q इंटू V, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V ज़ीरो हो गया तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। यही रीज़न यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस लाइन्स ऑफ फोर्स हैव आर एवरीवेयर एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर जगह क्या है? परपेंडिकुलर है, दैट इज द टेंजेंशियल। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस, अच्छा ये तो पढ़ा। इन a family of equipotential surface, the surfaces are closer together where the electric field is stronger and farther apart where the field is weaker. No two equipotential surface can intersect each other because वो चार्ज से कैसे निकलते हैं? टेंजेंशियल निकलते हैं, तो सब उसका लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल बी, they can't intersect at all. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं पहले इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है V इज W बाई Q नॉट। अब मैं इसी का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो W विल बी Q नॉट इंटू V। तो ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of charge is the work that has been done in bringing those charges from infinity to near each other to form the system. अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दे आर एट डिस्टेंस आर अपार्ट। तो सिंपल सा चीज़ है, हमें पोटेंशियल चाहिए और हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम वर्क डन निकाल लें तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, सिंपल वे। तो वी कैन राइट वन मोर थिंग कि हियर चार्जेस Q1 and Q2 are at distance r apart. Now we want to calculate potential due to charge plus Q1 at distance at point B. Now we can write potential at point B due to what? Due to charge Q1. तो क्या मिलेगा हमें पोटेंशियल का फार्मूला? वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू 1/4πε नॉट Q बाई आर होता है, बट हम लोग चार्ज प्लस Q1 की वजह से ले रहे हैं, प्लस Q1 एंड एट पॉइंट B, तो इनके बीच का डिस्टेंस R है, सो विल गेट व्हाट? Q1 बाई R। दिस इज इक्वेशन 1 से, एंड ऑलरेडी वी नो since work done is equals to V by Q2 यहाँ आ जाएगा। So what I'm writing, since potential यहाँ हमें work done चाहिए, तो since work done W is equals to charge into potential. This relation already we know since W is Q into V. So this relation we are using. तो यहाँ पे Q2 हो गया और V का फार्मूला 1/4πε0 Q1 by R. So ultimately we'll get W is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 by R. This is the formula for electric potential energy. We can say this is the formula for electric potential energy, and this work done is stored in the form of potential energy. We can write this work done is stored in the form of
electric potential energy, electric potential energy एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन हम लोग U से दे देते हैं. सो U विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. This relation finally we get. Okay, fine. Now next term is electric potential energy for system of charges. अभी system of charges के लिए यहाँ पे चार्जेस दिए हैं तो वेरी सिंपल इट इज़. तो वी कैन राइट हियर, हमने यहाँ बेसिक क्या देखा, u इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R. तो दो चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है, दो चार्जेस का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस. तो वही सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ भी है. एक पहली पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है. It is first possibility, it is second and it is the third possibility. तो हम ये तीनों कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं. So potential energy between charges Q1 and Q2, potential electric potential energy between charges Q1 and Q2 क्या मिलेगा. I will write U1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 बिकॉज ये चार्ज माइनस Q है अपॉन R12. दिस इज इक्वेशन 1 से. सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस माइनस Q2 एंड Q3, बिटवीन चार्जेस माइनस Q2 एंड Q3. तो माइनस Q2 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस दैट्स वी नो, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R23 है. सो U2 विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू माइनस Q2 अपॉन R23. इट इज़ इक्वेशन 2 से. एंड थर्ड वाला electric potential energy between charges Q1 and Q3. तो क्या मिलेगा, it is U3 is equals to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 by R13. This is equation 3 से. So net, therefore total energy of the system, total electric potential energy will be, what is common in all, 1/4 एप्सिलॉन नॉट. तीनों में क्या कॉमन है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म्स कॉमन है तो ये सबको एक साथ लिख सकते हैं. सो जो बचा, सो माइनस Q1 Q2 बाई R12 माइनस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 by R13. This is the final expression. Now next part is the work done in rotating an electric dipole in an electric field. तो वर्क डन निकालना है यहाँ. तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ लीनियर मोशन. बट अगर ये रोटेट कर रहा है, एज वी कैन सी, हमने यहाँ पे बनाया हुआ ऑलरेडी कि ये पहले डायपोल का पोजीशन है और ये रोटेट करके यहाँ से यहाँ पहुँचा. नाउ दिस इज द सेकेंड पोजीशन. देन इट मेक एंगल डी थीटा, और ये एंगल टोटल क्या था, थीटा था. तो हमें चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जो रोटेट कर रहा है. दैट इज रोटेटिंग लाइक दिस वे. वी कैन से ये इसका रोटेशन का पोजीशन है, दिस वन, राइट, एंड इट मेक्स एंगल थीटा. तो वी नो वर्क डन, लेट थीटा be the angle made by dipole
with electric field E when it rotates by an angle d theta, then work done is given by, ऑलरेडी हमने पढ़ा है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन हो रहा है, दैट इज टॉर्क इनटू डी थीटा, एंगुलर वर्क डन, दैट इज टॉर्क इनटू angular displacement, but torque is tau and displacement is d theta, right, it is dw. So already हमने torque previous video में calculate किया हुआ है, that is PE sin theta, torque का value है PE sin theta into d theta. Now total torque, therefore total work done, can be obtained by integrating dw from कहाँ से कहाँ, 0 to theta, एंगल, टोटल एंगल इज थीटा, फ्रॉम लिमिट हो गया ये, तो w will be integration of dw from 0 to theta, but dw already हमने कैलकुलेट किया है, this term that will utilize it, so it will be integration from 0 to theta of PE sin theta into d theta. So इसमें PE हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to theta of sin theta इंटू डी थीटा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो वी कैन राइट पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to थीटा. तो हम लिमिट अप्लाई कर लें तो माइनस पी ई एंड कॉस थीटा का लिमिट, ठीक है, कॉस थीटा का लिमिट इज फ्रॉम 0 to थीटा. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट कॉस थीटा माइनस कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो हमारा 1 होता है, तो कॉस थीटा -1, सो विल गेट माइनस पी ई इन ब्रैकेट कॉस थीटा -1, या फिर हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू पी ई, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टर्म स्विच हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी in an electric dipole in an electrostatic field. तो सिंपल वे वापस से वैसा ही कंसेप्ट है कि ये हमने एक डायपोल रखा है, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है एंड वी आर, ठीक है, तो everything is here only. The potential energy of an electric dipole in an electric field is equal to work done in bringing the dipole from infinity to inside the field. Infinity से dipole को ला रहे हैं इस field तक. Due to field E, the force F is QE, already हमें पता है, acts on the charge plus Q in the direction of the field and equal force F is equals to QE on the charge minus Q. अच्छा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q बिकॉज हम इसको
इन्फिनिटी टू इधर ला रहे हैं, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, बट वी आर ब्रिंगिंग टू दिस डायरेक्शन, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। उसके लिए ये चार्ज मैंने माइनस क्यू ले लिया, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इंटू एडिशनल डिस्टेंस मूव्ड। तो फोर्स ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ, इट इज़ माइनस क्यू ही, बिकॉज चार्ज क्यू है, इंटू डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, मीन्स वी आर मूविंग इट बाय 2l, तो एडिशनल डिस्टेंस हमारा 2l हो गया, सो इट बिकम्स माइनस पी ई। नाउ इफ वी रोटेट द डायपोल इन द फील्ड थ्रू एंगल थीटा, अभी इसके पहले जो किया वही एक्सप्रेशन है, देन वर्क विल हैव टू बी डन इन द डायपोल, दिस वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू PE1 माइनस कॉस थीटा, जो हमने अभी यहाँ निकाला था। W is equals to PE1 minus cos theta. This is the expression. This will result in an increase in the potential energy of the dipole. Hence, the potential energy of the dipole in the position theta will be given by this. दोनों को ऐड किया, so we are getting minus PE cos theta. Okay, so we complete this part, which is the electric potential and potential energy, which is the third chapter, and please like, share and subscribe my channel. इसका PDF link, पूरे notes का PDF link will be given in the description box, so you can download from there. Now thanks for watching this video.